let's begin first with white balance correction. Suppose I am taking this image. I will take a few images. Can you see the image? Yes, sir. So a simple way and a quick way to do correction, white balance correction, is in Photoshop. Just make a blank layer. Take from this blank layer. You can see blank layer over here. Layer 1 written. You can see the blank layer 1 written over here. Yes, Yes. sir. Okay, fine. Now just go to edit, fill, and the content, sometimes it might be foreground color, background color, this we have to take it to 50% gray. Click OK. Okay, once we click OK, we will have a 50% gray background layer. Then we will change the blending mode to difference. What happens, it inverts our images, and now it tries to give us a proper channel. Then we will go to threshold. Once we go inside threshold, you can see a threshold. So now it's dividing the colors and exposures of the image. Now we try to pull the thresholds down to minimize the colors and exposure up till a point where we can get a nice line, cluster line of a, suppose we get a cluster line like this, cluster line of a image around a pixel. So around, I think 12, depend on 12, between 12 to 25 is enough for us. So I will go around. So once you check it, okay, so we are getting this line. So these dark lines, the black lines, are area where we will sample for the white balance. Now for sampling, what we use the color sampler tool. Can you see this color sampler tool over here in the eyedropper panel? Yes, sir. Okay, always keep it in point sample, and let's make a point, enlarge your image big and see to the clutter and click on the black sample. Now we have a sample over here taken. So here a sample of the colors will come out. Now switch off both the layers and we will go to our regular curve adjustment layer. Okay, already we have selected a sample. Same over here, we will go to this. This is a scrubber which selects the area, drags to modify. This is your black point, this is your gray point, and this is your white point. We will sample always be neutralized with the gray point. As we click on the gray point and click on the sample point, you can see now my white balance is done. Can you see it? Now we have an option already in the RGB panel. If you want to reduce the greens a little, then you can reduce the greens. If you want to increase the yellows a little, you can pull down to the yellows. If you want to increase the reds a little, you can increase the reds or go the opposite way. So see, can you see the difference? Sir. Shall I repeat this process once again? Yes, it will be great if you repeat. So it's a nice way to do white balance quickly. Yes, sir. So let's begin once again. Okay, Sir, it will be good if you make another image rather than this. I am doing that only. Now suppose this image, we just are going to another totally opposite image. It has a blue yellow cast. Okay, right now we had a cooler cast, now we have a warmer cast. There is a difference na, between both the casting. It has a very yellowish feeling to it. So same thing we do, we make a blank layer. First you have to make a blank layer. You can't straight away go to 50% gray, 50% gray. Then we will go to fill. We have in contents, you have to select 50% gray and change the blending mode to difference. Now we go to the adjustment layer and go to threshold.
Now we try to adjust the threshold and bring a cluster of blacks so that we can take a point sample around 25. I think decent. Just check once. Yeah, the colors are okay, fine. So I'm getting a good cluster point over here. Nice. I'm getting a nice cluster point over here. Enlarge it very, zoom it very large. As you can see, pixel. Can you see the square pixels over here? Yes, sir. Now we go to color sampler mode and select the area, pixel area. As we click, you will see we have sampled the area. You can see we have sampled the area. This one. Okay. Now simply we go to curves adjustment layer. We switch off these two layers, the gray difference and the threshold, and we just take the gray. The center is the gray one, and click on the sampled area. Now we can see the casting is gone, but the color tones are missing because we already have here the areas. I don't want cyans, I want reds. I can pull down a little. Now I can go to the greens, I can go to the blues and come down to the yellows. And I in the greens, and let me go to the reds and bring the reds out. Now see, remove the color cast. So basically, if you find this sample is not good, then redo it once again, the threshold part, remove this, drop out this, and see, now we can see our sampling isn't okay right now. So we can, what we can do, we're going to go to the sampling and clear sample. We can clear the sample once again. Okay, now let's check out from another sample if it works fine there or not. So I have taken one more sample from here. Okay, fine. Now I switch off both the layers, go to curves, gray point, sample. So I have got the sample. Now I can easily adjust. I don't want cyans to be there. Green is fine, and I don't want too much of a blue. Now see, can you see the difference? The casting is gone. Any doubts? No, sir. Okay. Okay, fine. So white balance logic is clear. Now how we can correct the white balance? Now let's come down how we can consistently put a good rich skin tone. So you can see the image over here. Yes, sir. Okay, as we see the image over here, now I want a consistent skin tone over here. I want a very good bright out skin tone. So the best way is first to go, let me give it the eyedropper tool. First check out what is your it is a sRGB file. Okay, it's a sRGB file. Yeah, it's a sRGB file. No, let me check it once again. Bus check out before ki it's a sRGB file or an Adobe RGB file. It's an sRGB file we have opened. I will provide this in the group. Now we have this color equations to see to our palettes, if sRGB, Adobe RGB and ProPhoto RGB. So let me open an sRGB palette. So can you see this sRGB palette over the image? Yes, sir. You can see the sRGB palette over the image, na? So now what we do, we try to get a richer skin tone and match a skin tone and boost up our shadows, highlights and a little midtones. So normally what we happens, these are the values of the sRGB skin tone. There are various kinds of, like, let me come down. This is an Adobe RGB skin tone. If you are working in Adobe RGB, then this will be the Adobe RGB skin tones. So right now we are working in
sRGB skin tone. Okay, so let's work on the sRGB skin tone. Keep it upside a new layer, there will be no issues. Now just do one thing, just make a copy of the image. Okay, can you see the copy of the image? Make a back copy of the image and just select the proper areas, no color shift areas, skin, proper skin areas for averaging out. No need to do feather anything. Okay, now we will go to filter, blur, average. Now you can see it has blurred out, and deselect the image. Can you see it has blurred out now? Now what we do, now we go to our curves layer. We take a new curves layer, we take the scrubber or hand tool or the finger tool over here, we select the finger tool and click Control and Shift and click at the point of the average. Keep the point sample size to 11 by 11 because we are taking a bigger pixel. Okay, now I will show why we are taking it. We are just see each one pixel, so we are taking an average of 11 by 11 pixels. You can 11 by 11 pixels is ideal. You can go with 5 by 5 also, or 3 by 3. Point sample, don't go for it, keep it 11 by 11 pixels. Okay, now we will click Control and Shift and take a sample. Okay, we have taken a sample over here. As we take a sample and now we go to the red channel, you will see a dot over here. Can you see a dot over here? It has selected a dot over here. So the input is 176, which you find nearby to 176, first, second, third or fourth? Second, 176. I think 190C RGBC 1. We are in the red channel, so the first value is of the R, red. So which is 176 is there, which is the nearby sample, 190. So output we write down over here. One nine zero for reds. For greens, what it is? 142. And for reds, blues, what is it? It is 119. Now let's delete both the layers and see we have a beautiful bright out proper skin tone. Can you see the difference? Now you can reduce the opacity or work with the normal curves to increase or decrease the brightness, but you have a beautiful sampled out tone, balanced out tone. See, nothing has changed, only the overall output of the no contrast ratio hasn't also changed, nor the shadows have changed. It has just boosted up our colors and increased the luminosity of our image. Can you see the difference? Let me put side by side. Yes, sir.
So can you see the difference now? Shall I repeat this process once again? Yes, sir. Okay. So what normally we do, we take our normal image. I will provide this chart, okay, to you all. I will provide this chart. Let me open the chart and just drag and drop inside the image. Can you see? I have dragged and dropped this sRGB values. So now what we do, we just take our normal curves layer. We take our normal curves layer. We click on the finger button or toggle button and just and keep it as it is. Now we take a duplicate layer, and whenever you are duplicating a layer, just see to it that you sample only the fine skin areas. Don't go inside the eye area or this red area or eyeshadow or lipstick. Only the proper skin areas. Okay, be very particular about it. Now see to it. Now you will see here there is a hair. Don't go for a smoother area. Perfect. Now let's come down over here and select a okay. Now what we will do, filter, blur, which blur we will take? Average. Average. We will take the average blur. So it has averaged out our image. Now as we have kept the curves layer, we'll select the curve layers and we'll select the curve layers and go to Control and Shift in our keyboard and take the scroll and just click a point sample. Here you have to keep it point sample. Sorry, here you have to keep it point sample. So here I have sampled my image. Now you can see there is a dot made already over here. So now the input is 178, the output also I want nearby. See, if I change the output, the brightness will also change. Let's do with the 218 output. Okay, 218. Now the green in the 218 is 1. So always keep to the nearby output 171, and the blue output is 145. Now see, let me delete and remove this. So you have a brighter output. Can you see? One thing you can see about this, there is no changes in the contrastness and brightness. There is a changes, but there is no changes in the contrastness or in the shadows and highlights. It's not boosting, it's only boosting the colors via luminosity. Can you see the difference? So any doubts about this? No, sir. Let's no doubts. So this is how we can get good skin tones and brighten up our images as well. As let's do once again one more image, final image. Sir, it will work it on like mixed lighting scheme. Yeah, it will work it on. This technique is only for skin purpose, sir. It's for skin tones, for a good skin tone. Let me now come to one other image. See, now what's happening, I don't have a good skin tone over here, and overall what I will do, either I will enhance, decrease or anything, I will do this kind of a stuff for this image, na, right? Now what we do the same. We just duplicate, first we bring out our palette panel. So let's come down over here. sRGB. So I pull down the sRGB. Now I am
My palette is over already there. I make a duplicate layer of it. I just take the proper skin tone areas. This is one, this is the shadow part, this is a little the highlight part, and this is a little transition part. Okay. Sir, What? here I have a doubt. Huh. So you're selecting three, four areas according to which, I mean, like perspective, you're selecting the areas like brighter, What like what a image is comprised of okay, okay, the highlights, like that. midtones and shadows. I am only selecting the highlights, midtones and shadows. I am Okay, only selecting the smooth areas of highlights, smooth areas of midtones, smooth areas of shadows. Okay, got the okay. point. So when we are sampling, in which area we need to sample, sir? Smooth skin area na, I have taken a highlight area over here. Yes, sir. I have taken a midtone over here. Yes, sir. Midtone to midtone areas. I have taken a shadow area according to this image. Okay. Huh. There is no color shift in the, see in here, over here you can see a color shift. There is a Yes, sir. 3 color shift. But these are all smooth skin tone Yes. areas. Okay. Okay. Got it. Got it. So now what we do? We just do average blur. Now we deselect, go to curves, shift and control, and take a sampled point. As I click the sample point, I go to the reds. Now you can see a difference, 1 to 1 output. So 1 to 1 the nearby, the output is 1 to 1 over here. In green also it has come down. In blues the output is 48. No, wait, I have done a mistake over here. Let me redo it. Curves. So I still select a sample over here, reds. So reds it's showing 121. So nearby 121 I think 190 will be there only, because it's a shadow area for me, for us. Okay. No, it will go too much. I have done. So we go with the 1 to 9 option. It's nearby. 1 to 9, 96, 79. Now you can see, you can always reduce the channels if you want to. Got it? Basically it's for proper skin tones. It's not for boosting up images, it's for proper skin tones, as well as it gets a boost to the image. Okay, any doubts? Also. Okay, fine. Sir, before you're checking, it is image sRGB and Adobe RGB. How can we find that it is a sRGB image or a Adobe RGB? If you open camera raw, it will show cases which yesterday only na, downwards it will be written sRGB or Adobe RGB. Yeah. And even in properties we can find it. In the properties also we can find it, in documents also we can find it. Wait, I'll show you. Can you see the Photoshop screen right now?
Only the हाँ सर. Photoshop screen is visible, na? Hi there, this is Okay, fine. So what we do, we can go to the area property over here and see the document profile. Okay. So it's a RGB 8 scale. Can you see over here? Here. Can you see the document profile highlighted? Can you see the document profile highlighted? Yes, Ah, sir. sir. Yes, sir. Okay. Fine. So clear about this? Clear about skin tone matching? हाँ सर. So now let's come to Yes, sir, clear. quick boostings. Okay, let's do a quick boosting. How quick boostings work for us? Now let's come to, I will go to the grading part later on. Let's come here down here. Okay, can you see this image? So if you want a quick color boost, what will happen? What does a quick color boost do? How to enhance the image with very quick color boost? So normally what happens, we go to hue saturation. Okay, we go to hue saturation and click to color burn. We take one more layer and we go to hue saturation and go to color dodge. Okay, we reduce the amount of fill in the colors in the fill only. So 20 in color dodge, color burn, and 20 in color burn. Now what we do, we enhance the boost the color a little in color dodge and we boost the color a little in color burn, around 20. Now what we do, we just reduce the opacity a little to get a boost of colors instantly. So can you see the difference? Can you see the difference? Yes, sir. So instant boosting we can easily do with color dodge and color burn. So now let's come down to what are blending modes. So can you see these three colors over here? Can you see the three colors over here?
हाँ Yes, sir. सर। Okay, so we have blending modes. First blending mode is a normal blending mode. First blending mode is a normal blending mode. Okay. So what does a normal blending mode does? It basically keeps a normal light. Next is our dissolve. Dissolve open the pixels of our image. Dissolve works as a pixel opening of our image. Next blending mode is always for the darkness of our image. This area is always to hide the darkness of our image. So it will work according to once I go darken, see the white has gone out. Okay, the white has gone out. Yes, sir. So it will always help us to darken out on multiply. What it does, it removes the darkness from the colors also. Okay, it removes the darkness from the colors also. Switch off the camera a little. It's little dropping. So as we can see, in multiply it's removing the darkness from the colors also. Can you see the difference between darken? It's as it is. In darken it will always remove the brightest image, brightest colors. In multiply it will start removing the darkness from the color also. Now color burn, it will dodge the color, it will boost up the contrastness of the colors. Now linear burn, it will add more darkness, to our image, and darker color will try to balance out the darkness from our color. Mostly this doesn't nothing happens in this. It's a very minute change in darker colors. Shall I repeat this once more? Yes, sir. हाँ सर। देखो क्या होता है, मैं साइड बाय साइड पैनल भी रखता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक मिनट मेरे को प्रेजेंट हाँ दिख रहा है ना, पूरा फोटोशॉप स्क्रीन आ गया ना वापस? Yes, sir. ओके सो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा आइटम क्या काम करता है। ठीक है, ये वाला पैलेट छोटा सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कौन सा पैलेट क्या काम करता है। पहले तो नॉर्मल मतलब जो हमारा नॉर्मल रहता है, उसके बाद आ जाते हैं हम ये जो डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, ये होता है डार्कनेस के लिए। ये हमेशा हमारे किसी भी इमेज का डार्कनेस को हाइड करता है। अब इसका ये देखो, मैंने क्या किया, डार्कन, तो जो ब्राइटेस्ट पार्ट था, मतलब ये हमेशा व्हाइट पार्ट या ब्राइट पार्ट को हाइड करने की कोशिश करेगा, ये व्हाइट्स को छुपाने की कोशिश करेगा। सो जब मैंने इस पे किया, डार्कन पे किया, तो मेरा व्हाइट टोटली गायब हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये कलर से अब व्हाइट्स हटाना शुरू करता है, कलर बर्न में और डार्क करता है, लीनियर बर्न में डार्केस्ट करता है, और डार्क कलर में क्या करता है, ये पिक्सल्स को एनहांस करने की, पिक्सल्स में जो डार्कनेस है वो हटाने की कोशिश करता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं एक इमेज के साथ। इमेज भी दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है,
तो इमेज के साथ हम जैसे ही कर्व्स एडजस्टमेंट में गए, सबसे पहले हमने किया डार्कन। तो ये माइनर एडजस्टमेंट करेगा क्योंकि यहाँ पे जो वाइट स्पॉट बिल्कुल नहीं है तो उसको रिमूव नहीं करेगा। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई किया तो जितना भी ब्राइटनेस एरियाज है मेरे एरिया का वो गायब होना शुरू हुआ। कलर बर्न में ये कलर्स को बूस्ट करेगा और डार्क को और डार्क करेगा। लीनियर बर्न में ये ओवरऑल कलर और कॉन्ट्रास्टनेस को बर्न करेगा और डार्कर कलर में ये माइन्यूटली डार्क्स को हाइड करेगा। तो क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई, डार्कन, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्क कलर का लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा आता है इस पे, वो आता है लाइटन। लाइटन में क्या होता है हमारे, लाइटन में क्या होता है हमारे, ये हमारे वाइट्स को रिमूव करने की, हमारे इसमें से ब्लैक्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा। ये ब्लैक्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा, ये हमारा काम होता है, या हाइड करने की कोशिश करेगा लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज और लाइट कलर में। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने लाइटन किया देखो जो डार्क कलर्स है उसमें से गायब हो गए। क्यों? अब आप बोलोगे कि सर ये तो कलर, क्योंकि ये डार्क शैडो पे है बोल के ये ग्रे के अगेंस्ट ब्लेंड हो गया। अब जैसे ही मैं स्क्रीन करूंगा वो उस पे से हटा दिया। कलर डॉज में कलर वाइट्स को, ब्लैक्स को और दबा के बूस्ट किया कलर्स, और ये ब्राइटर बूस्ट हुआ लीनियर डॉज में। तो इस तरीके से जैसे हम इसको हमारे इमेज पे वर्क करते हैं, लाइटन, स्क्रीन, इमेज एनहांस हुआ, कलर डॉज में कलर एनहांस होगा, लीनियर डॉज में कॉन्ट्रास्ट प्लस कलर एनहांस होगा, और लाइटर कलर पे वो बेसिक वर्किंग करता है। तो नॉर्मली ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा वो आता है ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड मिक्स। ये बेसिकली हमारे इमेज के ग्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये क्या कंट्रोल करने की कोशिश करता है? हमारे इमेजेस के ग्रेस को हटाने के लिए, 50% ग्रे को हाइड करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओवरले। ओवरले में देखो एक चीज देख रहे हो, दोनों जो कलर्स है मेरे वो चेंज हो रहे हैं। ब्लैक और ब्राउन कलर मेरा थोड़ा मिक्स हुआ है, दिखा, ब्लेंड हुआ। सॉफ्ट लाइट में वो और सॉफ्टली ब्लेंड होगा, ये देखो, वाइट्स भी मेरा ब्लेंड होता है। हार्ड लाइट में वो पंच बूस्ट देता है कलर्स को हमारे, विविड लाइट में वो टोन्स को बूस्ट देता है। जो बेसिक कलर है, यहां पे अब एक चीज ध्यान देना कि हमारा वाइट और ग्रे, वाइट और ब्लैक पे काम होना बंद हो जाएगा। अब जो भी काम होगा हमारे कलर्स पे होगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज है। ओवरले में ये ऑलवेज कोशिश करेगा मैक्सिमम ग्रे के साथ ब्लेंड करने के लिए। सॉफ्ट लाइट में ये तीनों को ब्लेंड करने की कोशिश करेगा मगर कलर्स को न्यूट्रलाइज करता है 50% ग्रे में। हार्ड लाइट में अब ये सिर्फ और सिर्फ कलर पे वर्क करेगा, कलर बूस्ट करेगा और बूस्ट करेगा और बूस्ट करेगा। पिन लाइट में ये सीधा कलर शिफ्ट करेगा, सीधा कलर शिफ्ट करेगा, और हार्ड मिक्स में ये कलर चेंज करेगा, हार्ड मिक्स में ये कलर चेंज करेगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा ये तीनों कलर मोड में। तो अब ये इमेज पे आ जाते हैं हम, कंट्रास्ट इंक्रीज हुआ, फिर ये अब ये फिर ये कलर शिफ्ट किया, ये सीधा कलर चेंज कर दिया, ये पूरा कलर ही शिफ्ट कर दिया हमारे इमेजेस का। मतलब ये सीधा सीधा कंट्रास्ट बूस्ट कर दिया हमारे इमेज का। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? हाँ सर।
नहीं, कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है, पूछ सकते हो। कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सबट्रैक्ट, डिवाइड। क्या होता है, ये बेसिकली हमारे कलर्स को इन्वर्ट कर देता है, यानी हमें हमारे कलर्स पे चेंजेस लाता है। डिफरेंस, डिफरेंस सबसे पहले क्या करता है, हमारे कलर्स के ऑपोजिट कलर्स पे जाता है। एक्सक्लूजन उस कलर्स को लाइट करता है। सबट्रैक्ट उसमें से कलर निकाल देता है। डिवाइड सीधा कलर को स्प्लिट कर देता है। यह भी जब हम टोनिंग करेंगे तब और क्लियरली हो जाएगा। नॉर्मली इस पे क्या होता है, उतना आपको डिफरेंसेस समझ में नहीं आएगा इमेज पे, क्योंकि ये सिर्फ कलर्स के वर्किंग के लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनोसिटी। यू क्या करता है, पूरा कलर को शिफ्ट करता है। सैचुरेशन कलर्स को बूस्ट करता है, कलर्स उस कलर के साथ ब्लेंड करता है। और ल्यूमिनोसिटी, जैसे आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला था शुरू से, ल्यूमिनोसिटी ऑलवेज वाइट, ब्लैक्स और ग्रेस पे काम करता। तो जैसे ही मैंने ल्यूमिनोसिटी किया, उसने क्या किया, कलर को ग्रे कर दिया। तो ऑलवेज लुमिनोसिटी आपके इमेज के ब्राइटनेस एनहांसमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इमेज पे। इमेज पे सबसे पहले मैंने किया यू कर्व लिया। अब यू कर्व लेने से क्या होता है, ये कलर शिफ्ट करेगा, दिख रहा है। तो अब अगर मैं रेड गया तो ये हल्का रेड बूस्ट करेगा जहां रेड है। अब ये हल्का सा रेड्स को कट करेगा, बहुत ज्यादा कट नहीं करेगा। सेम गोज ग्रीन। उसके बाद आ जाते ब्लूज। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ गया हमारा सैचुरेशन। ये सैचुरेशन मतलब कलर्स को, ओवरऑल कलर्स, हमारे इमेज के कलर्स को बूस्ट करेगा। ये देखो, ये सैचुरेशन कर्व है। अब मैं आ जाता हूं नॉर्मल कर्व में। एक इसका इनपुट आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। 89 162 89। और साइड बाय साइड तो ये फर्स्ट वाला हमारा नॉर्मल कर्व है, सेकंड वाला हमारा सैचुरेशन कर्व है। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। वो सिर्फ कलर्स को एनहांस करेगा। सैचुरेशन कर्व्स हमारा, अगर अब मैं यहाँ पे ये कोशिश डिक्रीज करूँ इमेज को, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कर देगा। देखो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मेरे। ठीक ठीक है ना। हाँ सर। तो ये काम होता है सैचुरेशन कर्व का। क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। सो नेक्स्ट हम जाते हैं जो हमारा लास्ट कर्व है, वो है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस हमने अभी चार्ट पे देखा था, वो ग्रे का बेस कर देता है। तो जैसे ही मैं ल्यूमिनेंस से ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, वो वाइट, ग्रे और ब्लैक्स, इस तीन को ही एनहांस करेगा। कलर्स में कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा ल्यूमिनेंस कर्व का ब्राइटनेस। ब्लेंडिंग मोड्स क्लियर, क्लियर है ब्लेंडिंग मोड्स। हाँ सर। अब आ जाते हैं हम लोग
कलर टोनिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग कलर टोनिंग कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कलर टोनिंग करने का है ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप क्या करता है? ग्रेडियंट मैप आप जो भी कलर्स प्रोवाइड करोगे उसका एवरेज कलर बना के आपका कलर टोन देता है। ओके, ग्रेडियंट मैप का वर्क ये होता है। So can you see the gradient map over here? हाँ सर। So ये जो लास्ट मोस्ट पॉइंट है ये होता है हमारा डार्क पॉइंट, उसके बाद ये होता है हमारा ब्राइट पॉइंट और ये होता है हमारा मिड पॉइंट, मिड टोन पॉइंट। तो हम चाहे तो ऑल्ट दबा के अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं हमारे इमेज में चाहे तो। ठीक है, तो अब हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम लेते हैं कि हमको इसमें एक वार्म टोन इफेक्ट चाहिए सपोज। ठीक है, तो हमने ग्रेडियंट मैप लिया। अब इस जगह हमने 4 पॉइंट में ब्रेक किया। 0 के बाद हाफ कितना होता है? 25। उसके बाद का हाफ होता है 50, फिर होता है 75। तो हमने ये 5 लेयर्स बना दिए। अब हम इस पे सपोज ये वाइट मेरा ब्राइटेस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे मुझे कोई टोन चाहिए। सपोज मैं अब इस पे ब्राउन टोन में या वार्म टोन में वर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और ये मेरा डार्केस्ट पॉइंट है। सो कौन सा ब्लेंडिंग मोड ग्रे पे वर्क करता है? लुमिनोसिटी। ग्रेस पे कौन सा ब्लेंडिंग? वो तो लुमिनोसिटी हाई। अभी हमने चार्ट देखा था ना, ब्लेंड करता है 50% ग्रे के साथ। कौन से ब्लेंडिंग मोड्स ब्लेंड करते हैं? ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट एंड हार्ड मिक्स। ये ब्लेंड करते हैं। बाकी ये ब्राइटनेस देगा, ये कलर बूस्ट करेगा, ये सैचुरेशन बूस्ट, कलर बूस्ट करेगा, ये कलर शिफ्ट करेगा, ये एज इट इज उसको कलर दे देगा और लुमिनोसिटी फेड आउट करेगा। तो नॉर्मली हमारा ये होता है कलर के लिए। तो सॉफ्ट लाइट सबसे इवन टोन होता है हमारे कलर्स को बूस्ट करने के लिए। तो ये हमने बूस्ट लिया। अब चाहो तो आप इससे एडजस्टमेंट कर सकते हो। आपको चाहिए कि यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस चाहिए और ये शैडोज पे, तो यू कैन गो विद अ ब्राइटर पॉइंट। अब लगता है कि मुझे यहाँ पे ब्लैक्स की जगह थोड़ा ग्रेस चाहिए, तो यू कैन गो विद अ मच ब्राइटर पॉइंट। इस तरीके से अब मिड टोन्स आपको और ब्राइट चाहिए तो आप ब्राइट मिड टोन्स पे जा सकते हो। ये और कलर ब्राइट चाहिए तो आप और कलर ब्राइटर कलर पे जा सकते हो कंट्रास्ट लेवल बढ़ाने के लिए। अब चाहो तो आप यहाँ से कलर फिल को कम करके अपने टोन्स को रेडी कर सकते हो। नाउ सी, कैन यू सी टोन्स चेंज्ड?
डिफरेंस दिख रहा है? Yes, sir. Okay. नाउ जो ब्लू टोन था वार्म वो हट के अब जो ये है स्काई का अपना टोन आ रहा है। अब इसके बाद हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो वाइट पार्ट है मेरा ब्राइट पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा और वाइट की जगह थोड़ा सा लाइट ब्लू की तरफ ले जा सकता हूँ, तो रीगेन माय ब्लू कलर्स। एक बार फिर से समझा दो ग्रेडियंट मैप कि क्लियर है? क्लियर है? So once again, repeat, sir. Once again. हाँ। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस ग्रेडियंट मैप में, द कलर्स दैट यू बूस्ट अप, आप चाहे तो 5 कलर्स, 1 कलर, 2 कलर, कितने भी कलर का ग्रेडियंट मैप बना सकते हो। आपको ग्रेडियंट मैप लेना है। चलो अब मैं एक बेसिक कलर लेता हूँ कि मुझे ये ब्राउन टोन पे ही वर्क करना है। ओके, सो आई स्प्लिट इट इन ओनली 4 पार्ट्स। यहाँ मैं 25 को कैरी करता हूँ और यहाँ पे मैं 75। ओके, आई एम ब्रेकिंग इट इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकेंड पार्ट मुझे इससे लाइट चाहिए। थर्ड पार्ट मुझे एंड फोर्थ पार्ट मुझे डार्क चाहिए कि ग्रेइश न्यूट्रलाइज टोन चाहिए, मेरे ऊपर है। नाउ वी चेंज द ब्लेंडिंग मोड टू सॉफ्ट लाइट। दिखा? अब जैसे जैसे शैडोज पे आप चेंजेस लाने जाओगे, शैडोज, ये शैडोज का पार्ट है, ये ब्राइटनेस बढ़ते जाएगा। यहां अगर आप शैडोज की जगह कलर बूस्ट और देते हो तो सी, अब समझ में आ रहा है वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं हमारे एरिया टू एरिया। वो डार्क से लाइट, मतलब व्हाइट से लेके ब्लैक्स पे चेंजेस ला रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे व्हाइट पे ब्लू दे दूं तो ये जितने ब्राइट पार्ट है, या ग्रीन कर दूं, ये मेरे व्हाइट ब्राइट पार्ट को ये ग्रीन करने की कोशिश करेगा, बट ये अभी मैच नहीं लेगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बना हुआ। अब ये नेक्स्ट पार्ट, ये देखो, अब चाहो तो आप हल्का सा फिल कम कर सकते हो, कलर फिल। सो कैन सी द डिफरेंस? यस सर। अब बेनिफिट क्या है, आप इसको डबल क्लिक करो, ये लो, और इसको आप सेव मार दो, न्यू करके नाम दे सकते हो या कुछ भी नेम दे दो इसको। ये आपका एक जो भी है ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, यह आपका एक नया बन गया क्या, ग्रेडियंट, जो कि आप नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हो। सतीश, क्लियर? हाँ सर। सो सटल चेंजेस में नाउ यह आप सी आई एम बैलेंसिंग आउट विद द स्किन टोन को मैं बैलेंस करते हुए इमेज को बैलेंस कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, और जैसे ये हमारा एरिया है फेस का, हम सिलेक्टिव कलर पे चले गए, हम गए न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब हमारा बेसिक टोन है। बेसिक टोन में अगर मुझे रेडिश कम करना है तो मैं सायान को इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, हल्का सा येलो बूस्ट करता हूँ और हल्का सा ब्लैक से इंक्रीज करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन्वर्ट जाके सिर्फ फेस पे ही उसको मास्किंग कर सकता हूँ या स्किन टोन पे ही मास्किंग ले सकता हूँ अगर मुझे ये टोन नहीं चाहिए हेयर्स और स्किन पे।
अब मुझे ज़रूरत है तो नहीं, मुझे येलोस कम चाहिए, आई वांट नो येलोस। मैं रेड्स पे गया, थोड़ा सा रेड्स पे, सयान पे रेड्स इंक्रीज कर दिया, मजेंटा डिक्रीज्ड, ना कैन यू सी द डिफरेंस? गया रेडनेस मेरा खत्म हुआ। हाँ सर। हम्म। उसके बाद हम आ जाते हैं यू सैचुरेशन में। यू सैचुरेशन में आके मैं स्पेसिफिक कलर्स को सिलेक्ट करके इस पे चेंजेस ला सकता हूँ। ये पॉइंटर से मैंने कलर सिलेक्ट किया, मेरा येलो सिलेक्ट हुआ, अब मैं इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ चाहो तो। अब मैं ग्रीन्स पे गया, ठीक है, तो अब मैं सीधा जो मेरा डिजायर्ड कलर एरिया है मैं उसी पे वर्किंग करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर क्या होता है? कितने जन चैनल मिक्सर यूज किया आज तक? कोई चैनल मिक्सर यूज किया है? नो सर, यूज नहीं किया। देखे भी नहीं हो आज तक, चेक भी नहीं किया क्या होता है? नो सर। चैनल मिक्सर बेसिकली क्या होता है, आपका RGB का चैनल दिया हुआ है। ये क्या करता है, वो RGB चैनल मतलब रेड ब्लू ग्रीन में कोई स्पेसिफिक कलर है उसी को बूस्ट या डिक्रीज करता है, एनहांस या रिड्यूस करता है। अब जैसे हमने रेड चैनल है, रेड चैनल में जैसे ही मैं ग्रीन शिफ्ट करूंगा तो मेरे इमेज में जितना भी ग्रीन रहेगा वो शिफ्ट करेगा उसको। मेरे ग्रीन चैनल में रेड जितना रहेगा वो शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ये देखो एनहांस करेगा और शिफ्ट करेगा। सेम गोज विथ ग्रीन चैनल। अब ये ग्रीन इंक्रीज करूंगा तो ग्रीन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ग्रीन का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रीन का ऑपोजिट मैजेंटा। मजेंटा ना। तो अब देखो मैं जैसे ही ग्रीन का ऑपोजिट जा रहा हूं तो मजेंटा आ रहा है मेरे इसमें टोन में। रेड का ऑपोजिट मतलब ये, हाँ सायान, तो ये सायान हल्का सा मजेंटा के टोन पे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ये। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लू चैनल। जैसे मैं इंक्रीज करूंगा येलो इंक्रीज, ये देखो डिक्रीज किया येलो, इंक्रीज किया ब्लू एंड। तो बेसिकली इसका एक एग्जांपल मैं क्लियर देता हूं आपको। एक इमेज है बहुत अच्छा, इन्होंने ही खींचा था, नाइस। अब ये इमेज देखो, ठीक है, ये इमेज में उन्होंने यहां से लाइट दिया, ये ग्रीन लाइट है, करेक्ट? सतीश, कैन यू सी इट? हाँ सर। अब अगर मैं चैनल मिक्सर पे जाता हूं, ठीक है, लाइटनेस क्या करता है, हमने क्या देखा था कि लाइट को इक्विवेलेंट कर देता, लाइटन इक्विवेलेंट कर देता। तो हमारा भी एक कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है, ठीक है, ये ग्रीन कलर है ना आपका। तो ग्रीन कलर को सबसे पहले मैं डार्क आउट कर दिया, मतलब 0 -200। अब मेरे ग्रीन, अब अगर मैं कलर शिफ्ट करूंगा तो मेरे ग्रीन कलर्स पे जो कलर शिफ्ट होगा वो दिखेगा। आप रुको,
So let's open a channel mixer once again. So basically अब जो वर्क होता है, अब जैसे मेरा ये ग्रीन्स है, ठीक है, अब मैं अगर ग्रीन्स पे बूस्टिंग करता हूँ तो ये इमेज के ग्रीन्स को एनहांस और डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। जितना भी इमेज का, जब अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इमेज के ग्रीन्स वैल्यूएट हो जाए ये, तो बेसिकली ये कलर शिफ्ट देगा मेरे इमेज को। मैं सबसे पहले, और ये लाइटनेस मेरे इमेज को मेंटेन रखेगा। पहले तो लाइटनेस करने से मेरे इमेज को ये मेंटेन रखेगा, किसमें से सबसे पहले ये सारे कलर्स हटा देगा। अब गिवन चैनल के ऊपर ये वर्क करेगा। तो रेड चैनल में से वो ग्रीन निकालने की कोशिश कर रहा है, जो हमको ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं ब्लू चैनल पे। ये देखो, अब वो ब्लू चैनल से क्या कर रहा है, ग्रीन्स को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ब्लूज। अब अगर हम आ जाते हैं रेड चैनल पे, और अब अगर एडजस्ट करते तो ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है हमारे इमेज को। तो ये वर्क होता है हमारे चैनल मिक्सर का। ये बेसिकली जो एक्सेस कलर्स है उसी को लाइट या ब्राइट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ इमेज पे। तो हमारा ये हो गया, बेसिक मिक्सिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं वाइब्रेंसी में। वाइब्रेंसी में क्या होता है, हमारे कलर्स को ऑलवेज बूस्ट मिलता है। तो अगर हमको कलर बूस्ट करना है हमारे इमेज को, तो हम ऑलवेज वाइब्रेंसी इंक्रीज करके कर सकते हैं। अब ये जो मैंने एक ये बनाया, ग्रेडिंग बनाया, इसको ऑलवेज मैं सेव कर सकता हूं एज अ क्या, एज अ लुकअप टेबल। लुकअप टेबल में हमेशा ध्यान रखना, जो आपका इमेज है उसको आप ऑलवेज ब्लैक या वाइट कर लेना, आप उसको, और हमेशा लास्ट इमेज आपका लॉक रहना चाहिए। ठीक है, इस पे कोई कलर प्रेजेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और कोई भी आपका मास्क नहीं रहना चाहिए, सब मास्क को डिलीट कर देना। अब उसके बाद फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में लुकअप टेबल्स पे जाएंगे। लुकअप टेबल्स में जाके जो भी हमको नाम देना है इसमें, और इसका पॉइंट क्वालिटी 32% मीडियम रखना, बहुत बड़ा मत रखना। अब इसका जो भी हमको नाम देना है, सपोज हमको नाम देना है इसको ब्लू टिंट, और डिस्क्रिप्शन भी देना है ब्लू टिंट। अब इसको ओके करना, और जहां भी आपका ये एक आपने बनाया है, मैंने तो यहाँ लुकअप टेबल बना के रखा हुआ है, और उसका नेमिंग कर देना ब्लू टिन। तो ये अब हमारा ब्लू टिन लुकअप टेबल बन गया। सो अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कलर लुकअप टेबल पे जाता हूं और सर्च करता हूं यहाँ ब्लू टिन हो गया क्या, नहीं आया। अदर्स वर्क नहीं कर रहा है।
तो ये मेरा लुकअप टेबल आ जाएगा। अब इसको मैं चाहूँ तो ये ओवरऑल इमेज पे जैसे हमारा प्रीसेट काम करता है उस तरीके से ओवरऑल इमेज पे आपका टोनिंग देगा। उसके बाद चाहो तो आप ब्रश आउट कर सकते हो। लुकअप टेबल बनाना समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से हम अपने ग्रेडियंट्स को जैसे हम वहाँ सेव करते हैं ऐसे हम लुकअप टेबल बना के सेव कर सकते हैं। अब बेनिफिट लुकअप टेबल और इस पर क्या होता है डिसएडवांटेज कि हम जब नॉर्मली वर्क करते हैं तो हम ऑलवेज हमारे पास एडवांटेज रहता है कि हम मास्किंग कर सकते हैं, बट इस पे यही प्रॉब्लम रहता है कि हम मास्किंग नहीं कर सकते हैं। लुकअप टेबल में वो टोटल लेता है बट वो एक तरीके से आपको कंप्लीट ग्रेडियंट दे देता है वर्किंग करने के लिए। इस तरीके से आपका एक लुकअप टेबल तैयार कर देता है। अब इसको चाहो तो आप कलर एडजस्टमेंट से सिलेक्टिव कलर जाके ग्रेस जाके रेड सयान बैलेंस आउट कर सकते हो। और उसके बाद आप मास्क कर सकते हो। एक क्विक मैं दिखा रहा हूं, इसको मैं सेव कर लूं पहले। अब एक खासकर अगर ब्लैक क्लोथ्स पहने और डार्क क्लोथ्स पहने आपके सब्जेक्ट, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्विक टूल है टू कलर ग्रेड इज यूजिंग लैब कलर। इसमें सिर्फ दो ही कलर्स होंगे, ब्राउन एंड सयान। मोड में जाना, इमेज में जाना और इसको लैब कलर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मोड में जाना, इमेज पे जाना और इसको लैब कलर में कन्वर्ट कर लेना। तो अब यहाँ पे हम जब भी आते हैं हमारे पास सिर्फ दो ही कलर्स है, ए एंड बी। आप ए को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो और बी पे जाके कॉपी कर दो, तो यू कैन सी द डिफरेंस। सेम अगर आप चाहो तो बी को पे जाओ, बी को कॉपी करो, सिलेक्ट करो, ए को सिलेक्ट करो और कॉपी कर दो, ये आपका कलर चेंज। ये एक बहुत क्विक तरीका है आपका इमेज को बैलेंस आउट करने के लिए। लैब कलर से फिर जाके आप इसको आरजीबी पे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? एक बार समझा दो इसको, क्विक कलर ग्रेडिंग। ये सिर्फ दो ही कलर शिफ्ट करेगा। एक बार क्लियर कर दो इसको कि ये क्लियर है लैब कलर वाला ऑप्शन। क्लियर है। ओके हाँ, तो ये क्विकली हम इमेज को एनहांस एंड डिक्रीज कर सकते, मतलब कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो अब हम आ जाते हैं इस टाइप के इमेज को अगर आप क्लिक किए तो इसको हम कैसे कलर ग्रेड कर सकते हैं। कलर ग्रेड के लिए बेसिक पोजीशनिंग हमको देखना है कि हमको किस एरिया को ग्रेड्स करना है। जैसे अब ये एरिया हो गया, कोई भी एरिया ग्रेडिंग हो, चेंजेस हो, हम उसको कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हाँ एक चीज और कर सकते हो आप कलर ग्रेडिंग में। जैसे आपको कोई, आप जाओगे ना विंडोज एक्सटेंशन, ऐसे अडोबी कलर थीम आएगा एक तो, जिसपे आपके कलर्स रहेंगे। ये देखो एडोबी का कलर थीम आएगा ऐसा विंडोज पे जाके। तो इस पे हमेशा आपके कलर्स के पैलेट्स रहते हैं। जितना जितना आप स्प्रेड करोगे कलर पैलेट्स स्टेप होते जाएगा। और इस पे एक बेनिफिट क्या होता है, सपोज मुझे कोई कलर्स बनाने हैं या मुझे कोई कलर्स सेट करने हैं, तो मेरे पास इतने सारे कलर ऑप्शंस होते हैं। जब मैं ग्रेडियंट मैप यूज करता हूं तो मैं इस तरीके से अपना कलर पैलेट बना सकता हूं कलर थीम से। मुझे बार बार इमेज के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से वर्किंग कर सकता हूं। ठीक है, तो अब कैसे, हमने या एक्सप्लोर पे गए, हम एक्सप्लोर पे जाके ये कलर थीम्स पे आ गए।
ये अलग अलग थीम्स है या मोस्ट पॉपुलर थीम्स है। अब हम इसी को यूज करके कोशिश करते हमारा एक ये बनाना ग्रेडियंट मैप। फोर कलर डिवाइड करते, 1 5 कर लेते चलो। ठीक है, तो अब एक पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट कलर तो अब देखो इसके साथ हम पैरेलली स्वैचेस खोल लेते जो हमारे स्वैचेस आते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐड कर दूंगा हमारे स्वैचेस में। ये देखो अब ये सारे कलर्स मेरे यहाँ स्वैच पे आ गए हैं। तो अब जैसे ही मैं कलर ये खोलता हूं, मेरा जब भी मैं ऐसे खोलता हूं अपना ग्रेडियंट मैप, तो मेरे पास ऑलरेडी स्वैचेस है सिलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट कलर में लेता हूं, सो सी अब हम कैसे ये यूज करके हमारा ब्लेंडिंग मोड, नाउ वी कैन गो विथ कर्व्स, मल्टीप्लाई करके मैंने डार्क आउट कर दिया। अब मैं इमेज एरियाज ले सकता हूं लाइट्स के इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। नाउ सी हम ब्रश लिए, हम मास्किंग में आ गए। अब मुझे चाहिए कि ये एरिया मुझे हल्का सा ब्राइट आउट चाहिए, सो रिड्यूस द पॉइंट। अब थोड़ा सा हम सैचुरेशन इंक्रीज कर लेते हैं। नाउ सिलेक्टिव कलर से थोड़ा कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, न्यूट्रल में थोड़ा येलो एंड वाइट्स पे जाके हम थोड़ा सा ब्लैक्स। सो देखो ओवरऑल टोन मिल गया मुझे। और अब यू सैचुरेशन पे जाके
मैं इस कलर टोन को या चैनल मिक्सर पे जाके मैं हल्का सा टोन को ब्लेंड कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई डाउट्स? No, नो sir. सर। तीश, ये आपका इमेज है ना? हाँ सर। तो इसको आप अगर ग्रेडिंग करते या मिक्स करते तो किस तरीके से करते? मैं पूरा बोला था ना सर, लाइट रूम से लेके आके फोटोशॉप के आता हूँ। नहीं नहीं, जैसे फ्रीक्वेंसी आप ओवरऑल तो इस पे नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी से कलर रिटचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रेडिंग एंड डार्कनेस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर डार्क नॉर्मली आपका इमेज अगर आप जैसे खींचो तो ऐसे डार्क मोड में ही आता है ना ये? हाँ, डार्क मोड नहीं आता, मैं हाँ। लाइट रूम जाके फिर डार्क मोड करता हूँ उसको। अच्छा, मतलब फिर डार्क फिर से करके फिर इमेज को कैसे मैनेज करते? सॉरी, स्किन और ये मतलब पेयर के कपल के इमेज को कैसे मैनेज करते? कपल के मतलब इमेज कपल के टोन को कैसे मैनेज करते? सिलेक्शन करके फिर उसको वो करते, ब्राइट करते? हाँ सर, सिलेक्शन करके ओनली कपल को इरेज कर देता हूँ स्किन टोन। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो आई ये टेक टू लॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। आप ब्लेंडिंग या मोड्स के मुझे साथ जितना वर्क करोगे ना उतना इजीली नाउ सी डिटेलिंग्स भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं इमेज के, ठीक है? हाँ सर। सो ये एक तरीका है। अब एक लास्ट टेक्निक में समझा देता हूँ, वो है हमारा कलर इफेक्ट्स। कलर इफेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी गुड, अगर आपके पास होगा तो कर लो कलर इफेक्ट्स। कलर इफेक्ट्स में प्री लेड आपके ये डले रहते हैं, क्या डले रहते हैं? ग्रेडियंट्स। तो इसका मैं पूरा डिटेल समझा देता हूँ। सबसे पहले ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ब्लैक एंड वाइट कन्वर्शन, और इसमें ब्लैक एंड वाइट के अलग अलग टोन्स दिए हुए हैं, ठीक है? और इसके फिल्टर में ये इंक्रीज एंड डिक्रीज का ऑप्शन रहता है, और ये स्ट्रेंथ, कितना हमको स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, ये ब्राइटनेस और कंट्रास्टनेस के लिए है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें बाई कलर। इसमें दो कलर्स का ऑप्शन, मिक्सचर एंड ऑप्शन दिया रहता है, बाई कलर्स। ये बाई कलर्स पे भी आप एक चीज कर सकते हो, ओपेसिटी इसका कम और ज़्यादा कर सकते हो, और ब्लेंड इसको बेटर और नॉन बेटर कर सकते हो, और ये शिफ्ट कर सकते हो आपका कलर अप टू डाउन, साइड टू साइड। कैन यू सी? ये स्क्रीन तो दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर, दिख रहा है। ओके फाइन। नेक्स्ट इस पे आ जाता है हमारा यूजर डिफाइंड बाई कलर। हाँ, यही बाई कलर हम अगर खुद देना चाहते हैं, बाई कलर में ओनली 2 कलर्स हम खुद देना जानते हैं, तो ये यूजर डिफाइंड बाई कलर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें ब्लीच हाई पास, जिसमें हम बहुत कॉन्ट्रास्टी या बहुत ये डायनामिक रेंज स्टाइल के इमेज बनाते हैं नॉर्मली ये इसमें। तो इस पे आप इस तरीके से डायनामिक रेंज हाई इमेज बना सकते हो, मगर ये स्किन पे बहुत ज़्यादा, अगर आप आर्किटेक्चरल फोटोज कर रहे हो, आपको ये डिटेल्स इंक्रीज चाहिए, तो ब्लीच हाई पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, या बॉडी बिल्डर्स के बॉडीज़ को इंक्रीज करने के लिए भी ब्लीच हाई पास बहुत अच्छा ऑप्शन एक है। इसके बाद आ जाते हैं ब्रिलियंस एंड वार्मथ। इस पर क्या होता है, वही टिंट ब्लू और येलो की तरह जाता है, सैचुरेशन इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है इस पे, मतलब क्लासिक स्किन टोन, मतलब ये स्किन को सॉफ्ट, इमेज को सॉफ्ट करने की कोशिश करेगा, एक
सॉफ्टनेस देने के लिए, और इसको आप चाहे तो डिटेल्स को और डिफ्यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट आता जाता है इस पे कलर स्टाइलर, जिसमें एक सिंगल टोन स्टाइल देगा जो हम अपने इमेज पे डाल सकते हैं विथ ग्रेडियंट मैप ऑल्सो। कॉन्ट्रास्ट रेंज, इस पे क्या होता है, ये कलर्स के कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज और डिक्रीज करता है, कलर्स के कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज और डिक्रीज करता है ये। फिर आ जाता है कलर बैलेंस, तो ये नॉर्मली कलर बैलेंस या वाइट बैलेंस करेक्ट करने के लिए रहता है, या ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है हमारे इसमें, क्योंकि हम बेटर ऑप्शन से वर्क करते हैं। इसके बाद आ जाता है क्रॉस प्रोसेसिंग। क्रॉस प्रोसेसिंग बेसिकली वही चीज़ है जो हम ग्रेडियंट मैप से बनाते हैं, ये प्रीलेट क्रॉस प्रोसेसिंग आपको बना के दे दिया है, तो यूज इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इस पे ऑप्शन डार्क कॉन्ट्रास्ट। इसमें ये कॉन्ट्रास्ट के डार्कनेस को बढ़ाना, मतलब कॉन्ट्रास्ट को डार्क करने की कोशिश करता है ये। फिर आ जाता है डार्कन लाइटन सेंटर। बेसिकली ये एक मिड पॉइंट दे देता है आपको, ये पॉइंट आप ले लिए, जैसे क्लिक करोगे पॉइंट से, तो अब ये पॉइंट के अकॉर्डिंग डार्क और लाइट करने की कोशिश करेगा आपके एरिया को। विनियटिंग इफेक्ट आपको देने की कोशिश करेगा ये। फिर आ जाते हैं डिटेल एक्सट्रैक्टर। ये एक बहुत यूजफुल टूल है, खासकर अगर आपको आपके सब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे अच्छा डिटेल देना है, तो ये डिटेल एक्सट्रैक्टर बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ये डिटेल्स इंक्रीज करता है। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? सर अभी ये डिटेल्स है ना हाँ। इसमें, और बैकग्राउंड पूरा डिटेल्स में आ जाता, मुझे फेस उतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए, जस्ट वो ब्रशिंग आउट करना पड़ेगा तुमको, ये ओवरऑल इमेज में वर्क करता है। गॉट इट? हाँ, इसमें पूरा ओवरऑल इमेज में करता। हाँ, इट्स मतलब ये एक तरीके से समझ लो कि आपका या तो एक ऑप्शन आपके पास और है, लेट मी शो यू। डिटेल कॉन्ट्रास्ट, नहीं, डिटेल एक्सट्रैक्टर। ये आपको, ये देखो यहाँ पे एक सर्कल पॉइंट दिया हुआ दिख रहा है, कंट्रोल पॉइंट। हाँ सर, ये आपको कंट्रोल पॉइंट लेके ये सर्कल बना देगा। इसमें दो चीजें, सर्कल, ये देख रहे हो सर्कल बना हुआ। हाँ सर, जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा वो एरिया कवर करेगा, ठीक है। और हाँ। ये ओपेसिटी कम ज्यादा करेगा उसका। अब इसको आपको ऑल्ट दबाओगे तो ऐड करते जाएगा एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने इमेज से बचा के ऐसे इस तरीके से आपको एरिया को कवर लेना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल एरिया को मैनेज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे आपको लगता है मुझे सर्कल छोटा करना, आप छोटा कर सकते हो उस एरिया का। ओके। वही मुझे क्या बोले थे, इधर पूरा मैनुअल में ही होना, इसलिए हाँ, रुको, एक क्लिक से क्या हो जाता बोले तो पूरा इमेज को अप्लाई हो जाता। हम लोग मैनुअल करे तो किधर कौन सा एरिया में कितना होना उतना ही हम लोग ले सकते हैं ना। ये देखो मेरे इमेज पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, सिर्फ आजू बाजू का एरिया जिसने मैंने सर्कल से सिलेक्ट किया वो एरियाज पे उसने चेंजेस कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट्स बना हुआ है, तो इस तरीके से आप इस पे वर्क कर सकते हो। क्लियर? ओके, क्लियर सर। ये हर एक में दिया हुआ है। ये अब देखो सेंटर, एक मिनट रुको, हर ऑप्शंस में ये दिया हुआ है, ये कंट्रोल पॉइंट। अब ये कंट्रोल पॉइंट जैसे ही मैं इस पे ले लिया, ये सर्कल के हिसाब से काम करेगा। सी सर्कल इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो अब ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट, ये सिर्फ उतने एरिया को ही ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है, दिख रहा। यही एक ऑप्शन है इसमें इंडिविजुअली वर्क करने का।
ये प्लस और माइनस आप इजीली कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन है इसमें इंडिविजुअली वर्क करने का। सेम गोज देखो ब्लीच हाई पास, अब मुझे सिर्फ इतने से एरिया पे चाहिए, ये देखो दिख रहा। अब इसी को मैं पुल कर सकता हूँ, ऑल्ट दबा के ये पॉइंट दबाओ, ये इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। अब हल्का सा इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, अब इधर भी शिफ्ट कर दिया। अपने इमेज को बचा के चलना। हुआ, दिख रहा। क्लियर हुआ ये कि हम क्लियर इसको हो मार्किंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हाँ। ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स में बेसिकली ये कलर्स को ये करता है, डिफ्यूज करता है। और ये एक नया मतलब ये इसका खुद का बनाया हुआ एक वो है, स्किन सॉफ्टनर है, जिसपे जितना रीच बढ़ाओगे आप उतना ही ये डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपके इमेज को। नॉर्मली ये ओवरऑल इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, इसीलिए इसे हम प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फेडेड। ये अब अलग अलग कलर इन्होंने पहले से बना दिया है, अलग अलग इफेक्ट्स। इसको भी आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो विथ कंट्रोल पॉइंट। तो ये अलग अलग इफेक्ट दिया हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न इफेक्ट, इस पे भी अलग अलग इफेक्ट्स दिया जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे इमेज पे डालने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ये अलग अलग विंटेज इफेक्ट, ठीक है। फिर नॉस्टैल्जिक इफेक्ट। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स है जो हम यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने दिखाया, आप कंट्रोल पॉइंट लेके एरिया बाय एरिया इस पे वर्क कर सकते हो। अब ये फिल्म ग्रेन्स ऐड करने के लिए ये फॉग इफेक्ट, ऐसा फॉग का इफेक्ट देने के लिए हमारे काम आता है। ये ऐसा फॉगी इफेक्ट आपको अगर सपोज कोई स्पेसिफिक पॉइंट में एकदम फॉगी इफेक्ट देना है तो आप इजीली इसको वर्क। अब इस पे एक दूसरा इमेज ले लेता हूँ तो बेटर लगेगा। तो अब आपको अगर फॉगी इफेक्ट देना है ये एरिया डेफिनेशन के लिए, इसकी ओपेसिटी स्ट्रेंथ के लिए है ये। तो ये फॉग इफेक्ट देने के लिए काम आता है। अलग अलग फॉग इफेक्ट है आपके पास इसमें देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फजाइल। फजाइल क्या होता है, ये ऑलरेडी एक प्री लेड इसने कलर दिया है ग्रीन का, वो बूस्ट करने के लिए, ग्रीन कलर्स को बूस्ट करने के लिए। इमेज के ग्रीन्स को देखना, इसके में चेंजेस आएगा। स्पेसिफिकली ग्रीन कलर्स के लिए इसने बनाया, दिख रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा वो है ग्लैमर ग्लो। ये बेसिकली पहले हम डिफ्यूज लेंस यूज करते थे, उस तरीके से ये ग्लो देने की इमेज पे कोशिश करता है। सतीश, हम कौन से कितने आईएसओ में फोटो खींचो? around 800 Why? plus will be. Why? It is totally dark. It is around evening 6:30. Evening 6:30. Light used? 6:37. Light used? Sorry? लाइट कौन सा यूज किया? 600. AD 600. AD 600. ISO शटर स्पीड
Shutter speed will be it's also 500, 400, 500 between. 500 शटर स्पीड Yes. एंड 800 ISO, तो बैलेंस आउट कहाँ होगा इमेज? So shutter speed aperture. I don't know aperture shutter. अभी दिख जाएगा, रुको बता रहा हूँ. एक मिनट. नहीं अभी पता चल जाएगा, 1 मिनट रुको. हाँ वही. 800 shutter speed, 4.5 aperture, 800 aperture. ये ISO. हाँ सर. तो मतलब क्या हुआ? एंड हु गिव यू द आइडिया कि डार्क में सॉफ्ट बॉक्स पे ये यूज करना चाहिए मुझे, डिफ्यूजर क्लॉथ? Sorry. आपने डिफ्यूजर यूज किया ना यहाँ पे? Only soft light regular. Diffuser कुछ भी यूज नहीं. नहीं, इस पे डिफ्यूजर है ना, सॉफ्ट लाइट पे, ये हाँ, बॉक्स पे हाँ, डिफ्यूजर हाँ, है ना, ये हाँ, बॉक्स सर. पे डिफ्यूजर है ना. रीजन? हाँ हाँ. रीजन सॉरी, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Because of उधर सर के ऊपर जो सॉफ्ट लाइट गिरता ना कभी भी, इसलिए. बहुत टेक्निकल मिस्टेक है एक्सपोजिंग में. Sir, it is not out of the context, sir. That is the major things where people are failing. Yeah, it's true. That's why I don't do online photography workshops. I do offline because I can teach this much better than anything else. Okay, so let me clear it. Clear it. सबसे पहली बात, HSS का रूल समझ लो आप लोग. What does high speed sync mean? सब तो गोडॉक्स यूजर हो. Yes, sir. Unfortunately. नहीं, fortunately भाई, I am a mentor, so I will always say fortunately. Being a mentor of Godox, I will say fortunately always. Yes, sir. We use it. What is the basic meaning of HSS? Generally, when we go on larger, I mean, like more shutter sinks, then it will be useful. ठीक है, then it means कि it breaks the period of time. Okay, so Yes. when you are using HSS, means you are controlling the ambient light and your main light. Your light for HSS means shutter is controlling the ambient light. Clear? Clear. Shutter is working on my ambient light, and I am using this light to light up my subject. Clear? First and foremost thing, clear. So what Yes. is 1/800 shutter speed, or 1000 shutter speed, or 2000 shutter speed, or 8000 shutter speed? What does that mean? बोल दो एक बार, क्लियर हो जाएगा. It's 1/800, 1/1000, 1/4000. मतलब 1 सेकंड का 4000 हिस्सा है, 1 सेकंड का 800 हिस्सा है. मतलब आप समझ रहे हो Yes. कितने स्पीड से शटर बंद हो रहा है आपका. गॉट द पॉइंट? तो सबसे पहली बात समझ लो इसको, कि जब भी आप हाई स्पीड सिंक यूज करते हो, टू बी वेरी क्लियर, स्टार्ट मेकिंग अ कॉम्बिनेशन. आप कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रहा, आपको यहाँ बहुत बड़ी सॉफ्ट बॉक्स की जरूरत है ही नहीं. दूसरा, आप जितना बड़ा डिफ्यूजर लगाओगे उतना वो लाइट सॉफ्ट करेगा, उतना ही वो लाइट रीच करने नहीं देगा आपको सब्जेक्ट को. और जहां आपने ISO बढ़ाया घुमा फिरा के, तो मतलब वही हो गया, क्लिकिंग इट एंड मीन्स योर shutter speed 250 and ISO 60, you will get the same result. You will get the same result. You will get the same result. Result में कोई changes नहीं आएगा.
चलो ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस हाई स्पीड सिंक का। तो बहुत हद तक He may try to get the sari fly, sir. हाँ That's why he may increase the. He may try to get the sari fly. साड़ी फ्लाइंग तो ओके ना, तो इंक्रीजिंग द शटर स्पीड ISO, तो ही हैज इम्बैलेंस द इमेज ना। And even I feel the light is not in a proper angle. नहीं लाइट तो ओके, लाइट एंगल इज सब्जेक्टिव, यू कैन नेवर गेस कि लाइट एंगल, एवरीवन हैज देयर आइडिया एंड नेवर अग्री कि देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लाइटिंग। Exactly. Okay, if he wants to freeze the sari also, 250 will definitely freeze the sari. There will never be any jerks. The reason is, what does a ISO do? Can anyone tell me? Yes, sir. ISO is a matter. What does the ISO do? ISO is increasing lighting more up and down, sir. Nahi. Decreasing the I will explain it. Let me finish this part of color effects first, because it's the last part. So color effects, then I will explain you how to work properly in high speed sync. So where we were, vintage is gone, here neutral, high key. So these are, see, neutral filters which will give upside. You will, any color you want to boost up, it's will give that color. This graduate neutral filter, you can change the shift also filter, increase or change the rotation of the filter with it. This is the work of graduate user defined filter. Okay, next option in this is fog. Same goes with the fog thing, increase and decrease the fog part to give a dreamy effect. Next filter in this is fragile glamour glow is gone. Okay, we have done it. High key, it will always give a high key to your image. It will give a very high bright kind of a image to you. The next filter in this is borders, which gives borders, and Indian summers. This will basically affect your greens, which we do the corrections in your camera raw or use saturation. It is defaultly made, it will change the colors of a green to a brownish tone or little skin towards the brownish tone. Next is infrared. It will change the image to infrared colors, and it has various colors in it to change it. Next option of us is इसमें जो next option दिया, the next option is ink. It's a pre-laid ink toning that you have, which you can give to your image. Then levels and curves. It has levels and curves to work for, same as the levels and curves we have been working in it. I still don't know why Nikon left this software. Again, low key, just opposite of high key, you can go with a low key over here, and you can use the points to always control your low key, as I have shown. Next is midnight. It gives a foggy midnight kind of vibe. If you reduce the blur, it will reduce, and it all basically neutral, blue, green, sepia tone, and increase the brightness. So it will help you in increasing the, giving a tone, midnight tone in it. Next option is one of Monday morning. It's the same kind of a toning that they have given to you to work with. Old photo. It will give a very old photo look to your image. And always remember, below the control point there is a opacity button which will increase and decrease the opacity of the filter that you have used. Okay. Next option is paper tone. It will give up various kinds of monochrome tones to your image, and if you increase the texture, it will increase the texture of the paper in your image or grains in the image. Basically it will work according to that only. Next option is pastel. It's also multiple late pretones which will help you out in giving tones to your image. Polarization, basically it is just to polarize your image or increase the darkness and lightness of blues. Polar transfer is basically texture and transfer of the image.
Next is pro contrast. It's a very instant and beautiful way to increase the contrastness of the image. इसको देख लो, इस पे 3 है. फर्स्ट, इंक्रीज द कलर कॉन्ट्रास्ट ऑफ योर इमेज, correct contrast of your image, and dynamic contrast of your image. If you want individually, you can also see this area which is a little dark out. You can always help out with this. We can help out with this. See. So it's to increase the contrastness of our image. Pro contrast. Then reflects. It's basically reflector effect. We have 3 kinds of reflector: gold, soft gold and silver. As we use the reflector, same with the reflector. इस पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने कम करने का ऑप्शन दिया, जैसे हमारा रिफ्लेक्टर, और फॉल ऑफ कहाँ से कहाँ होगा, और पोजीशन कैसे चाहिए मुझे, जैसे हम रिफ्लेक्टर यूज करते वो पोजीशनिंग और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देने के लिए सेम एज वी यूज रिफ्लेक्टर, ये वैसे ही काम करेगा. ये गोल्डन टोन का रिफ्लेक्टर हो गया मेरा, मैं इंटेंसिटी कम कर दिया. तो ये बेसिकली रिफ्लेक्टर जैसा हमारा वर्क करता है. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट, रिमूव कलर कास्ट. इट हेल्प्स इन रिमूविंग कलर कास्ट. कोई भी कलर्स को आपको टोनिंग देना है तो ये उसका काम करता है. उसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो सनलाइट. बेसिकली एक सनलाइट इफेक्ट देने की कोशिश करता है टेम्परेचर में. सनलाइट का स्ट्रेंथ ये देने की कोशिश करता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर ब्राइटनेस, हाईलाइट्स, मिड टोन एंड शैडोज वेरी इफेक्टिवली इज टोनल कॉन्ट्रास्ट. इसको स्टडी कर लो, ये बहुत जगह आपके डॉजिंग एंड बर्निंग में भी हेल्प करेगा. It consists of 3 things: highlights, midtones, shadows. Now if I pull down the midtones to 0, see the midtones are equal. अब मैं जैसे highlight को boost करता हूँ तो ये highlights को increase करेगा, shadows को boost करूँगा तो shadows को increase करेगा या decrease करेगा. अब इस पे अलग अलग ऑप्शन दिया: high pass, fine, balance, strong. Saturation you can decrease or increase. Now see, if I increase a little midtones and reduce the highlights a little, you can see the difference. दोनों इमेज में डिफरेंस दिख रहा है. सो ये ऑलवेज आपके टोनल्स को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है. नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे लास्ट, विनिएट फिल्टर. आपको विनिएटिंग करना है अपने इमेज को, और इसमें भी आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो और साइज को डिसाइड कर सकते हो छोटा बड़ा करना है कि नहीं. लास्ट, विनिएटिंग ब्लर. अगर आपको आजू बाजू ब्लर देना है तो भी आपके पास ये ऑप्शन है, और इस पे भी आप अपने पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आप मल्टीपल लेयर्स वर्क कर सकते हैं. अब सपोज मैंने इंडियन समर कर दिया मेरे ब्राउन लीव्स के लिए, मेरा इंडियन समर कंप्लीट हो गया. अब इस पे मुझे चाहिए कि मुझे कलर क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा ये चाहिए, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोसेसिंग. तो इस पे ऐड क्लिक करना. ऐड क्लिक करके ये एम्प्टी फिल्टर में अब हम क्रॉस प्रोसेसिंग डालते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए. तो देखो अब क्रॉस प्रोसेसिंग से मेरा कलर ग्रेडिंग हो गया. मैं स्ट्रेंथ चाहूँ तो बड़ा, अभी अलग अलग क्रॉस प्रोसेसिंग दिया है मेरे वर्क के लिए. अब मुझे लगता है कि दिस, हाँ, नाउ आई कैन रिड्यूस द ओपेसिटी ऑफ इट. लेट मी चेक वन. हाँ, दिस इज आई थिंक फाइन, बहुत अच्छा जा रहा है. अब मैं इस पे ऐड करके टोनल कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता हूँ. अब टोनल कॉन्ट्रास्ट में मुझे मिड टोन 0 चाहिए, मुझे मिड टोन ज़्यादा चाहिए नहीं. 25 इज इनफ फॉर मी. एंड शैडोज शुड बी 0. highlights okay. Saturation I don't want too much saturation. Okay, now I can increase the midtone a little. Increase the midtone a little.
and reduce the highlight a little. ठीक है, अब ये आ गया. अब एक फाइनल मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा फॉग इफेक्ट चाहिए इस पे इफ आई वांट, और मुझे चाहिए थोड़ा सा या तो क्या बोलते हैं कलराइज इफेक्ट. कलराइज इफेक्ट में मैंने गया और इसमें मैं जाके इसका ओपेसिटी कम कर दिया. तो इस तरीके से हम ग्रेडिंग इस पे भी कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. और एक बेनिफिट है, इफ यू क्लिक ओवर या सेव रेसिपी नाम दे दोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा, जो कि आप बाद में रेसिपीज पे जाके यू कैन इजीली यूज एनी ऑफ द गिवन दैट यू हैव सेव्ड. जैसे आई हैव क्रिएटेड मेनी ऑफ दिस फिल्टर्स, आई कैन इजीली यूज वन ऑफ देम. सेम एज योर कैमरा रॉ, इस पे भी आप प्रीसेट्स बना के सेव कर सकते हो. सो एनी डाउट्स, कोई डाउट्स या कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछना है? कोई डाउट्स? No, Sir.